Good evening, everyone. I hope you can hear me. Yes, I can see that I'm live. So, guys, good evening, first of all, and I welcome all of you to our today's live session. And I am Richa Sera, who is editor in chief to Responsible Hospitals. So, today's session is all about Ayurveda techniques, Ayurveda treatments, anything which is related to any remedies which could be related to Ayurveda. So I have a very special guest today. Her name is Ms. Nair, and Soumya Nair is one of the finest and I would say one of the best consultant who is been treating a number of patients through Ayurvedic techniques, and people who have the perception that Ayurveda cannot change lives or cannot correct the major problems, I think they will be getting their answers right here. So guys who all believe in Ayurveda and have even similar doubts that whether it can be many of the diseases can be treated or not, so many questions and doubts can be answered within this question. And I'm going to start this session with her on a note of immunity building, because that is what everyone is looking for these days. And we'll start with it, and then probably you can just come up with your question. I have my questions ready, so as soon as I just add her, we'll start our session soon. So by the time she joins us, I would like to say hi to everyone. Hi Ria, hi Soumya. I can see you that you have joined, but I would be expecting you to send me the request so that I can add you to this live session. So guys, team, in case Soumya is facing any challenge, probably you can just help us out so that she can be added soon. However, people who are quite interested, a number of people who are going through daily problems, just like acidity issues, or probably issues like hair fall, or maybe the pain, cervical pain, all these issues probably can be corrected through Ayurvedic and Panchkarma treatment, I would say, which he can talk about well. So I would want every one of you that just note down all your questions. I'm going to pick up all those questions here. Yeah, hi Soumya, I am waiting for your request to come in so that I can add you. I can see your messages. Yeah. So guys, a lot of people even have normal doubts in their daily life, like is it does Ayurveda has all the solutions to all the issues, or let's say they have all the remedies to all the critical problems like cancer or maybe some bigger problems. But I'm sure with the help of Ayurveda you can correct the diseases from the root. So that is the major and main point of Ayurveda, which everybody should know, and everybody should actually understand it better. They should read about it, they should learn it, and they should hear it more often, because our India is so much into Ayurveda that we all can cure a number of things which we face, probably with the home remedies as well. And then up to that, if we don't have that, then Ayurveda is there to help you out in any of the matter. So guys, we will pick up questions like that, how Ayurveda is different from allopathic. Is it better than allopathic, or what she has to say about even homeopathic? So I'm sure many of you have common issues, cough and cold. So can it be corrected by Ayurveda? Because all of us keep on doing home remedies like having a kada, or having salted water, having some ginger. So that is also a part of Ayurveda, because we are built up like that, and we try to build our immunity even with all those home remedies. So I'm sure it will add value to all the viewers of us today. We have never done this session ever before, so this is a good opportunity for all the viewers to ask such questions in the session. So guys, Ria, can you just help me out? Probably just reach out to the team and see how can I add her. Hi Sapna. Guys, by the time she joins me back, if you have questions, because I can just share with you which all questions I can I have for her.
So I'm going to pick up questions like boosting immunity. I'm going to pick up questions like what are the supplements, for the good health, and what kind of lifestyle thing we can actually, you know, put it in our lifestyle. I mean, which all things we can do on a daily basis so that through Ayurveda remedies we can cure those problems as well. So everyone these days is for going through this pandemic of COVID-19, and I'm sure people who never had even the kara and all these things, now they have started having regular kara, turmeric, ginger, and people are having regularly having hot boiled water, tea, green tea, yellow tea also. So most of the things are they are quite related to the Ayurveda. So Ayurveda is very important for all of us, to have those remedies in our life, to know more about it, to read more about it, so that we can, with those simple remedies, we can actually change our lives. So Dr. Soumya has changed so many lives, and she has given treatment to thousands of the patients in South India. She is quite known there, and she is running a very good clinic called with her Panchatra treatments. So I would really congratulate her for doing this with the help of home remedies. No, Ria, it is not done yet. I am not able to get her request. I can't see her. Yeah. So I'm still waiting for her. Yes, Sachin, you're right. Ayurveda is our ancient science indeed. So people are forgetting it and they are shifting towards the allopathic. I think for them it is now it's time to realize. At the time of pandemic, people are realizing that Ayurveda is really working miraculously good. People are helping themselves with some home remedies only, because there is no vaccination which has come up in the market. So even allopathic is actually people are trying a lot of efforts to get the vaccinations out, but by the time it comes in, probably we can focus more on the Ayurveda part. So I could see from my team that there is a technical issue, so I'll add her soon. By the time she gets added, probably we'll talk. I will be here to talk with you. So guys, in case you have anything which you want to share related to Ayurveda or Panch Tantra treatment, you probably can just put in your comments also. True, I always prefer Ayurveda because it has no side effects. Yes, that's true, Sachin. It has no side effect, but yes, we'll have some. I can see her. Just add her here, guys. I can just see Dr. Soumya. She's just trying to add herself here. Just a second. I'm just trying to connect, guys. Good evening, Dr. Soumya. Yeah. Hello. Yeah, can you listen to me? Yeah. Yes. Yes. I can hear you. You can hear me. You can see me. Yes, I can see you, but there is a processing which it is showing as in the network is not proper. Probably you can take a place where the Sorry. network is good. Your image is still. Your voice is clear. Your image is still. So I can't see the movements. One minute. One second. Yeah, you can take your time. It's okay. I'll wait for you. Yeah. So as you said, Now Sachin, that yes, you you. can see, ma'am. No, dear, I can't. I mean, I can hear you, but your screen Okay, is I can. still. It's not moving. Do you want me to add you again? Do you want to send the request once again? Try that Yes. probably. Yes. So just I'll You do. I can don't just know. log out and can send the We are. request once again. Usually face these challenges. Also, our network could also be a big problem these days. So, as we were talking about, Ayurveda has no side effect, as he commented well. So, guys, you're right. Even I think the same, that it has no side effect, but still people have a lot of doubts about it, whether it is, all the remedies are there in Ayurveda or not, or people want to have quick treatments through allopathic and they don't want to wait for longer time
because Ayurveda, I think, takes longer time to cure any disease. So it's better to have a discussion with Dr. Somya only. She can talk more clear about it and she can give her own comments and experience she can share. Yeah, Dr. Somya? Yeah, hello. Yes, Now, can you see me? I can see you, but your screen is still. But that's okay. We can just start the session because people are waiting. Oh, Yeah. oh, So I would like to thank you for giving your valuable time, Dr. Somya. I was just telling all the audience that you have been into the Panchtattva treatments and you have been, consulting a number of patients and you have cured a lot of people through your Ayurveda, remedies. So we'll start with the simple question. As you know, there's a pandemic situation. The COVID-19 is on and a number of people are using home remedies to cure. They just want to take all the precautions which they know already. What do you think? What all they can do to build immunity at their home only? Sitting at home, probably with your tips, they can get some help. okay. Uh, uh, I'm Dr. Soumya Nair. Just I'll introduce myself. I'm Dr. Soumya Yeah. Nair. I'm an Ayurvedic physician with 15 years of clinical practice. And I have an Ayurvedic center, Ayurveda, at Sector 56, Gurgaon. So now we'll start about the diet, Ayurvedic diet for the immunity booster. Uh, See, in Ayurveda, we prefer to enhance the immunity in a natural way by enhancing immunity by in a natural way by consuming the foods that are rich in amino acids, zinc, vitamin C, etc. So the foods like sprouts and then citrus fruits like different citrus fruits like oranges, lemons, amla, and then you can have the seeds of various fruits like melons and papayas, etc. So all these will act as an immunity booster. And then during these COVID times, I try to avoid too much of oily food and too much of junk foods, and then just minimize the usage of sugar, that is white sugar. And then you can avoid that consumption of red meat, etc. And then according to Ayurveda, we should follow a sattvic diet, like Okay. sattvic diet. So it helps to calm the body and mind. And then sattvic diet includes like all the leafy vegetables, that is green leafy vegetables, and different types of seasonal fruits, and then different types of seeds and nuts, etc. You can add. And then in daily basis, I mean, like we can add more turmeric and then coriander powder, and then we can use more garlic, ginger, and then cinnamon, etc. in our diet. Okay. And in then we can have herbal tea instead of normal tea, like now just Ayush Kaf. I mean, I think you have heard about the Ayush Kaf for the COVID time. So just we can prepare the Ayush Kaf at home itself, like 400 ml of water. You take it. In that, we can add 1/4 pinch of cinnamon and 1/4 pinch of that what haldi. That is haldi. You can add it turmeric and 1/4 black pepper, 1/4 teaspoon of black pepper, and then almost 10 to 20 leaves of tulsi leaves into that boiling water, and just while just make it warm, and then make it 1/4, that is 100 ml to 100 ml. So boiling reduce to 1/4. And after taking it out and after filtering, you can add lemon juice into that and jaggery, and you can have this herbal tea two to three times in a day. So it is very effective in all viral infections. And then in if the patient is diabetic, then he can avoid that patient can avoid the jaggery. So Sure. these are the diets we should follow during these COVID times and for the immunity booster. And the Ayurvedic medicines, like we are having the immunity booster Ayurvedic medicines like Giloy, Ashwagandha, and then Tulsi, Haldi, and then you can have wheatgrass, etc. Can be used as a daily basis for an immunity booster. I mean, it's available in different forms. Tablet form is there, and syrup form is there, and then juice form is there. Any form you can have it. So it will improve your immune system. Sure, doctor. I think So very you can hear me, important no? information. I think it will really benefit a number of people because Sorry, you can't hear. You can't see me. I can, your screen is still, but I can hear you very clearly.
so no problem. Okay, okay. Yeah. Okay. So I was just saying that it is very beneficial. I mean, the information which you have just passed it to us, it is really relevant, Sorry, and I sorry. think everyone can start having all these things in their daily routine, because most of the things which we already know, but you have added, you know, you just mentioned about Giloy, so all these things also can be taken even within the tea, or you just said probably as a raw in the raw form, right? Yes. Correct. So that's really useful, and that's a very important information. And doctor, do you also suggest people taking any supplements? Because you just mentioned it's very important to have, vitamin C, then multivitamins, then zinc. So, do you think people should start taking supplements for these things? Yes. I mean, in Ayurveda also we are having supplements, which doesn't have any side effect. So you can have like ashwagandha. I've already told about ashwagandha, and then giloy, and then muleti, haldi, and then triphala is the best choice. And then that other things like vidhari, shadavari, shvedamusli, etc. are used as a supplement. So ashwagandha is like it is a very good stress reliever, and then it is very good for the muscle growth and immunity booster, and it is very effective in all that viral infections, etc. So you can have it. And Brahmi, the same. It is a brain tonic, and it is good for all that memory booster. And then again, it is good for all the sleep disorders, stress reliever. क्योंकि main तो होता है stress ही main होता है सबको अभी during COVID times है ना. तो stress की वजह से क्या होता है immunity कम हो जाता है. तो just stress relieve करने के लिए ये सब आपको आप कर सकते हैं ये सब. And then उसके बाद हल्दी. Haldi is an anti-inflammatory, and then it is that antioxidant, anti-allergic, Right. so you can use it daily. Okay, and then उसके बाद आप त्रिफला इज द बेस्ट चॉइस. त्रिफला में तो मेन होता है आंवला, हरड़ एंड बहेड़ होता है ना. तो उसके अंदर भी यू कैन हैव, आई मीन इट्स अ माइल्ड लैक्सेटिव. So mild laxative means you can have it in the all the abdominal problems, that is gut disorders, acidity problems, and it is a very, I mean, it is good for the detoxification of our body, and it is good for eyes के लिए भी अच्छा है, and then hair के लिए अच्छा है, skin के लिए अच्छा है. So that you can have it. Apart from this, I have told all Okay. the sharavari, and then all as a supplement you can take all these items. Sure. I mean all these So, herbs, not items. sure, doctor. So just adding to this, I have a question that you just mentioned that you can take it as a supplement. So do you think, like you mentioned about triphala, which usually people who have stomach issues, they take it. Do you recommend that everyone should start taking it on daily basis? Is it okay? Or people who have some problems, I mean, they should only take it. What do you suggest? See, Triphala, I mean, Triphala is very good option. Because Triphala is if they are having some constipation related problem or any abdominal related problem, that is gastric problem, maybe acidity problem. In that case, they can take daily, but regular basis also you can take it. It is So there very, is I no have told you, harm. There is no harm. नहीं, there is no harm. क्योंकि in that the main आंवला होता है, हरड़ होता है, बहेड़ा होता है. तो आंवला is vitamin C, so it is good for immunity booster होता है. And हरड़ and बहेड़ is the, and it's a mild laxative. And again, बहेड़ा is very good food to control the cholesterol. And amla and हरड़ is very good for the diabetic patients. I mean, just to not only patients and normal people के लिए, they can also take it. Triphala daily basis, 1 teaspoon at bedtime with warm water they can have it. And Triphala का भी different tablet, even थोड़ा bitter taste होता है, तो in case थोड़ा मुश्किल हो रहा है, then they can take tablet form. Otherwise juice form also they can take it. तो वो daily basis Okay. भी ले सकते हैं, no problem. Sure. Also, doctor, since now people are focusing more on Ayurveda in this situation, I mean, do you think अगर हम लोग ये सब चीजें regularly लेते हैं, it would really benefit for all the audience that they might not catch corona, or let's say even if somebody catches, they will fight it well, so there will not any harm. Do you think these Yes. things really help? Yes, ये सब अभी लेना ही. अभी ड्यूरिंग दिस टाइम ये मैंने क्या क्या बोला अभी, अश्वगंधा, गिलॉय, त्रिफला एंड ऑल वेरी, आई मीन वेरी इफेक्टिव मेडिसिन. आई मीन गिलॉय एंड तुलसी एंड ऑल, इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल द वायरल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. मेन तो कोविड तो लंग्स को ही अटैक करते हैं, तो जस्ट यू कैन हैव इट इन द डेली बेसिस एज अ इम्यूनिटी बूस्टर. आई मीन Okay. ऑल कैन हैव इट. So, और डॉक्टर मुझे ये बताइए that does, I mean, since you mentioned so many things, इनमें क्वांटिटी का भी होता है, जैसे कि lot of people know that they should have ashwagandha, they should have giloy.
So kitna quantity? Some people have plant at their home, they just pluck it and they just chew it. I don't know if it is good or bad or which way they should be taking. That is my one question. And second, kitna quantity lena chahiye? ओके, गिलोय का देख लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स एज, एक तो है। तो गिलोय का भी आपके घर में पौधा है तो उसका स्टेम काट कर, ओके स्टेम, तो वो आप लेकर उसको जूस भी बना सकते हैं, फ्रेश जूस। इफ इट इज ए फ्रेश स्टेम जूस, फ्रेश स्टेम, देन यू कैन टेक इट जूस फ्रॉम दैट। ऑलमोस्ट नॉर्मल एडल्ट डोज में बोलती हूँ, एडल्ट डोज ऑलमोस्ट 15 to 20 ml. In that 20 ml of water, they can mix it and then can have it in empty stomach. Morning empty stomach and evening empty stomach, they can have it twice. But in case of children, I mean below 12 years, 5 to 10 ml they can have in juice form. And for small kids, we are having the Giloy powder also. Giloy sat करके एक आता है, तो Giloy powder also they can have it. तो बहुत छोटे बच्चे भी आते हैं क्योंकि कॉमन कोल्ड फ्लू वगैरह करके आते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम गिलोय का पाउडर थोड़ा हनी में मिलाकर उनको जस्ट 1/4 टीस्पून, टिप ऑफ द टीस्पून थोड़ा हनी में मिलाकर डेली देने के लिए बोलते हैं। तो उससे क्या है ना, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा बूस्टअप हो जाएगा, उससे क्या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन बॉडी का तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो पाउडर फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में भी है, तो वो आपका एज के हिसाब से थोड़ा वेरीज होता है डोसेज। वो एक डॉक्टर के पास जाइए तो आपको करेक्ट डोसेज वो बताएंगे। एंड इन सम कंडीशंस लाइक बहुत सीवियर केसेस है डिसीज वाइज है, तो उसमें थोड़ा डोसेज ज्यादा भी हम देते हैं। ओके, श्योर। अदरवाइज ये बच्चों को भी दे सकते हैं? इज इट गुड फॉर किड्स आल्सो? सॉरी, आई डिडंट गेट यू। आई सेड ये बेबीज एंड किड्स के लिए भी होता है, दे कैन आल्सो टेक इट? हाँ, यस 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 यस, बेबीज एंड किड्स के लिए भी है। हमारा पाउडर फॉर्म आता है, गिलोय का एक पाउडर आता है एंड एक सिरप भी आता है, अमृतारिष्टम करके एक नाम से आता है। वो छोटे बच्चे से लेकर हम छोटे बच्चे के लिए भी देते हैं। आई मीन ऑलमोस्ट 3 मंथ से भी हम है ना थोड़ा थोड़ा उनको पाउडर वगैरह जस्ट 1 पिंच जूस में पानी में तो ब्रेस्ट मिल्क के साथ मिलाकर भी हम फीडिंग बेबी के लिए भी हम देते हैं गिलोय का पाउडर। एंड अमृतारिष्टम करके एक सिरप आता है, वो आप ऑलमोस्ट 5 ml डोज, नहीं तो 2.5 to 5 ml डोज में भी हम दे सकते हैं। Sure. Perfect. I mean, sounds really good. So, doctor, I can also see few questions. I'm just going to pick up some questions. See if you can just say something about it. Sachin is asking, I've heard that Baba Ramdev is claiming that he has launched a sure remedy for corona named Coronil. Please suggest, is it sure cure for corona or just a precautions or a marketing gimmick? कोरोनिल एंड श्वासारी, यस यस, अभी उन्होंने पतंजलि ने लॉन्च किया करे थे कोरोनिल टैबलेट, श्वासारी वडी एंड अनुतलम का एक किट आ रहा है। तो एक्चुअली कोरोनिल टैबलेट में भी द कंटेंट व्हाट द सेम थिंग ओनली दैट गिलोय व्हाटएवर आई हैव टोल्ड एज अ इम्यूनिटी बूस्टर, तुलसी गिलोय ये सभी है। तो एक्चुअली ये कोरोना को क्योर 100% वो ट्रायल तो 100% नहीं किया है, बट अगेन कोरोनिल टैबलेट सबसे अच्छा होता है, इट्स गुड फॉर द इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं होता। कोरोनिल टैबलेट लेते समय टैबलेट उसके अंदर मेन गिलोय, तुलसी एंड देन अश्वगंधा ये सब भी है। तो जस्ट ये इम्यूनिटी को आप अच्छा करेंगे, इम्यूनिटी बूस्टअप करेंगे, तो आपको जस्ट क्या वायरल इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक कोरोनिल, बट 100% क्योर नहीं बोल सकते इस केस में ना। कोरोनिल टैबलेट से कोरोना 100% क्योर हो गया, क्योंकि ट्रायल तो 100% नहीं हो गया है, तो आपको भी मालूम है उसके बारे में। बट देयर प्रोडक्ट, आई मीन उसके बाद श्वासारे वडी भी है उनका, वो भी अच्छा है श्वासारे वडी। अनुतैलम अच्छा है उनका, अनुतैलम मीन्स एक छोटा ड्रॉप आया है, तो वो पहले ही था आयुर्वेदिक में। तो क्या वो हम कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या है 2-2 ड्रॉप हम उसमें नाक में डालने के लिए बोलते हैं। उससे क्या पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो क्लियर होता है, सो दैट कोई भी बेलगम, कोई भी ब्लॉकेज सब खुल जाता है। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकत देता है एंड देन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन टेक इट, नो कोरोनल टैबलेट ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। So it's like an immunity booster basically. So people, yeah, it is an immunity booster. So there's no side effect. You are just saying that we can just have it so that people, जिन लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होगा बहुत सारी चीजें मिक्स करके खाना, तो एक टैबलेट ले लिया एंड देन प्रोबब्ली इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल, इज इट? सॉरी, अभी कोरोना इट्स आई मीन योर वॉइस, एक सेकंड, आपका वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है इन बिटवीन। तो मैंने पूछा कि जैसे कि आपने बहुत सारे रिकमेंड किया है कि हमें अश्वगंधा लेना चाहिए, गिलोय लेना चाहिए, बेसिल लीव्स लेना चाहिए, सो ऑल दैट एक एक बार लेना पीपल
Hello? Sorry, I lost you. Can you see Ah, me? Can you hear me? yes, 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 yes. Hmm. Yeah. So So equity lena, I mean, you are asking that all that medicines together lena, it is very difficult. You are asking that, no? हाँ, so आई एम जस्ट सेइंग कि टू मेनी सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या वो डायरेक्ट खाना चाहिए या फिर ये एक इस तरीके की एक टेबलेट खा लो एंड देन यू आर डन विद इट, मतलब इजी, इट्स इजी टू कंज्यूम नहीं वन इसमें, टेबलेट। ओके, नहीं इसमें देख लीजिए, हर्बल टी तो हम घर में ही बना सकते हैं। फर्स्ट वाला आयुष्पाद मैंने ओके। बताया था, हाँ वो हाँ। तो आप घर में ही बना सकते हैं, क्योंकि सिनेमन पाउडर हमारे पास होता है, काली राइट। मिर्च का भी होता है, एंड सौंठ का पाउडर होता है, तुलसी लीफ तो सबके घर में होता है, एंड देन लेमन तो मिलता है। तो ये आप एक हर्बल टी जैसा आप पी सकते हैं, वो डेली सुबह शाम। एंड उसके साथ आई मीन एडिशनल सप्लीमेंट, क्योंकि अभी ड्यूरिंग दिस टाइम में बोलो, नहीं तो नो प्रॉब्लम। अभी आपको एडिशनल सप्लीमेंट चाहिए तो ये भी ले सकते। गिलोय का टैबलेट फॉर्म आता है, मैंने बोला गिलोय का टैबलेट, जूस पाउडर बच्चे लोगों में है तो, राइट। एंड अश्वगंधा है, गिलोय अश्वगंधा यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम। एंड हल्दी वगैरह तो आप हर्बल टी के अंदर ही आप ऐड कर लीजिए। Okay, awesome. So, going forward, I have few different kind of questions, doctor. Uh, Please, ये बताइए कि बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस आते हैं कि आयुर्वेदा करने लगते हैं ट्रीटमेंट, बट साथ में उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है। डू यू थिंक एट अ टाइम उनको एक ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, आइदर एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, और डू यू सजेस्ट कि दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं? देख लीजिए, वो डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह इधर इधर भी हमारे क्लिनिक में, आई मीन ट्रीटमेंट सेंटर में बहुत पेशेंट्स आते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, एंड देन ऑल द कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होकर आता है, फैटी लिवर होकर आता है, एंड देन थायराइड प्रॉब्लम आता है। इन केस में क्या है ना, दे वर टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन फ्रॉम ऑलमोस्ट ईयर्स, है ना। तो आई मीन ओके। आई मीन द डायबिटिक पेशेंट्स आई एम टेलिंग, they were taking all that allopathic medicines and फिर भी उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है, एंड देन सम इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। उस कंडीशंस में भी क्या है ना, उनको कंट्रोल नहीं मिलता है। तो दैट केसेस के उस केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे सपोर्टिव हमारा मेडिसिन देकर धीरे धीरे उनका ग्लूकोज, आई मीन 15 डेज के लिए हमारा दवाई देता है, मेडिसिन देता है। उसके बाद हम देखता है कि उनका ग्लूकोज मॉनिटर, आई मीन शुगर लेवल मॉनिटर करके, और धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन दैट इंसुलिन विड्रॉ धीरे धीरे करते हैं, एंड देन एलोपैथिक मेडिसिन आल्सो विड्रॉ करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्या ना, ओनली एक, आई मीन इसमें क्या कोई नुकसान नहीं होता, नॉट ओनली दैट, आई मीन कोलेस्ट्रॉल में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि थायराइड में भी होता है, धीरे धीरे विड्रॉ करना पड़ता है। तो अब हम दोनों साथ में चलेंगे उस समय, बट उसके बाद हम उसको विड्रॉ 100% करेंगे। उसके बाद ओनली विद मेडिसिन, विद डाइट, थोड़ा डाइट बताते हैं और थोड़ा योगा बताते हैं, उससे ही उनका कंट्रोल लाइफ लॉन्ग चलता है। एंड इन सम केसेस, अभी कोई पेशेंट आता है डायरेक्ट टू अस, क्योंकि शुगर पेशेंट्स आई मीन स्टार्टिंग से ही हमारे साथ आते हैं, तो उस केसेस में हमें तो ऑलमोस्ट भी बता सकते हो, 100 नहीं बोल सकते, फिर भी ऑलमोस्ट 80 to 90% हम मैनेज कर सकते हो, ऑलमोस्ट ऑसम। थायराइड लेवल में भी, थायराइड का केसेस, एंड देन इस केसेस में भी, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में आना चाहिए। तो उसमें क्या ना, हमें उनका ऑलमोस्ट 80 to 80% नॉर्मल होना मीन्स दैट इज, आई मीन विद डाइट, विद योगा, विद हमारा थोड़ा मेडिसिन वगैरह दे, मेडिसिन नहीं है, करेला जामुन जूस वगैरह सब देकर उनका टेक करते हैं। तो दोनों साथ में साथ करना, नो प्रॉब्लम, बट सेम टाइम लेना इट इज नॉट सेम टाइम। मीन्स अभी एलोपैथिक मेडिसिन लिया, उसके ऊपर ही काढ़ा पिया, तो वो समटाइम्स रिएक्ट कर सकते हैं। तो यू गिव अ गैप ऑफ 2 आवर्स का गैप कर लीजिए दोनों के बीच में, वो आप कर राइट। सकते हैं। ओके। ऑल्सो सिंस यू हैव जस्ट मेंशन डॉक्टर, आपको लगता है कि जो लोग रेगुलर डायबिटिक, मतलब जिनको सीवियर ये इश्यूज हैं डायबिटिक या ब्लड प्रेशर, सो जिनकी रोज मेडिसिन होती हैं, दे हैव टू ईट मेडिसिन फॉर इट ऑन डेली बेसिस, डू यू थिंक विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उनका मेडिसिन वो छूट जाता है, और दे हैव टू ईट दोज मेडिसिन लॉन्ग लाइफ नहीं, एज डॉक्टर यही मैं रिकमेंड? बोला, या यही मैं बोला था, क्योंकि बीपी पेशेंट्स का भी और डायबिटीज पेशेंट्स भी बहुत लोग आते हैं। उस केसेस में देख लीजिए, अभी 100 पेशेंट्स आ जाएंगे, उसमें हम है ना उनको एक तो डाइट चार्ट बना कर देते हैं। डाइट तो मेन होता है, शुगर वगैरह, आई मीन डायबिटीज में तो मेन डाइट कंट्रोल करना पड़ता है, और पैंक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा योगा एक्सरसाइज वगैरह हम उनको बताता है। तो ये सब आप उनको करना पड़ता है, और उसके साथ हमारा दवाई भी स्टार्ट करके, एंड ऑलमोस्ट मैं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को हम एलोपैथिक दवाई भी उनका विड्रॉ किया है। और ओके। कुछ केसेस में थोड़ा हमें नहीं कर सकते, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, दोनों, क्योंकि उनका डोज बहुत कम करें। इंसुलिन का मैं बता दूं, इंसुलिन डिपेंडेंट आता है, तो उन केसेस में क्या है ना, राइट। उनका 4 बार इंसुलिन ले रहा है, तो उनको क्या है ना, एक बार करके हमारा जब दवाई दो टैबलेट हम देंगे, तो उससे उनका बिल्कुल कंट्रोल रहता है। Awesome. This is fabulous. I mean, it's really, I mean, मुझे सुन के इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है that
people who are actually क्योंकि एक चीज कही जाती है आयुर्वेदा के लिए कि that Ayurveda cures all the problems, you know, from the root level, which allopathic does not, you know. Correct. So I really like that concept because अगर कोई प्रॉब्लम है ही, हम लोग क्विक करने के लिए, उसको इजी करने के लिए उसको दबा देते हैं. Neither we shift to the right treatment for it, and then you will end up facing those problems again and again in the life. और आपको Correct. लगता है कि वो बार बार क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों हो रहा है, right? So I understand what you're saying, and it's really important information which you're sharing. So so doctors also tell me, I've heard probably कि जो सर्विकल पेन्स होते हैं, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, you know, cervical pain, back pains. What remedies or what, how do you cure them? What kind, मतलब those kind of problems, उसके लिए आपके पास क्या होता है, उनको कैसे क्योर किया जाए? क्या 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 पेन है? जो सर्वाइकल का बैक पेन पेन है या सर्विकल पेन है, नर्व का पेन है, मस्कुलर पेन है, एनी बॉडी ओके, पेन बेसिकली? कोई भी पेन रिलेटेड. ओके, सर्वाइकल का पेन, बैक पेन वगैरह बहुत कॉमन हो गया. आई मीन अभी तो ऑलमोस्ट हमारा पेशेंट्स आता है उसमें भी बहुत सारा केसेस आता है, क्योंकि मिडिल एज से यंग एज से लेकर मिडिल एज एंड ओल्ड एज वाला सबका यही प्रॉब्लम है कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम, लंबार का, आई मीन बैक पेन वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम, घुटनों का प्रॉब्लम सब होता है. तो इस केस में हमारा मेन सर्वाइकल का रिलेटेड प्रॉब्लम में सबसे पहले हम बैक पेन का मैं बताती हूँ. बैक पेन सर्वाइकल का प्रॉब्लम में क्या है ना, पहले हम पोस्चर उनका मेंटेन करते हैं. पोस्चर मेंटेन मीन्स उनका एक तो सर्वाइकल एक्सरसाइज वगैरह बताता है. आई मीन एक स्टार्टिंग स्टेज है तो सर्वाइकल एक्सरसाइज वगैरह बताता है, और उसके बाद थोड़ा प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलता है, क्योंकि दैट मीन्स हेवी लिफ्टिंग वगैरह नहीं करना, वो सब नहीं करना करके बोलता है. एंड देन उसके बाद भी, एंड देन वी आर हैविंग द ट्रीटमेंट सेशन आल्सो. उसमें हमारा इंटरनल मेडिकेशंस भी हम देता है. इंटरनल मेडिकेशंस बहुत सारा है, सो दैट ना उनका स्पॉन्डिलाइटिस चेंजेस कम करने के लिए वो हमारे पास दवाई भी होता है. एंड ट्रीटमेंट मीन्स, ट्रीटमेंट में हमारा क्योंकि सर्वाइकल का प्रॉब्लम के सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो हमारा ग्रीवाबस्ती करके एक ट्रीटमेंट है, ग्रीवा पिचू करके एक ट्रीटमेंट है. ये सब पंचकर्मा ट्रीटमेंट है. ग्रीवा पिचू करके ट्रीटमेंट है, अभ्यंगम होता है, एंड देन कीड़ी होता है. सर्वाइकल, आई मीन ग्रीवा पिचू मीन्स उसमें क्या होता है आपका नेक का, क्योंकि डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम, सर्वाइकल डिस्क रिलेटेड बहुत कॉमन है अभी. तो उस कंडीशंस में हम क्या उनका ग्रीवा बस्ती मीन्स हमारा ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल होता है, वो पोर करके वो डिस्क सर्वाइकल वर्टेब्रा के उधर हम थोड़ा रखता है. उसके बाद वो निकालने के बाद अच्छी से मसाज करके, उसके बाद कीली वगैरह करके, मसाज मीन्स इसे नॉर्मल मसाज नहीं होता, इसे थेरापेटिक मसाज होता है. वो थेरापेटिक मसाज करके उसके बाद पॉटली मसाज करें. पॉटली मीन्स एक्चुअली इट्स अ मेडिकेटेड पाउडर से पॉटली बनाता है, वो भी इट इज वेरी बेनिफिशियल इन ऑल द सर्वाइकल प्रॉब्लम. एंड इन द बैक पेन रिलेटेड प्रॉब्लम, सी बैक पेन हमारा आयुर्वेदा के सबसे हम बोलते हैं कड़ी ग्रह बोलते हैं उसको, क्योंकि वायु, क्योंकि हम बात आयुर्वेदा में तो वायु बात के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन देखकर हम ट्रीटमेंट देते हैं. तो उसमें क्या है ना, वायु एग्रीवेट होता है, तो वायु एग्रीवेट होने की वजह से बैक में पेन होता है. तो उस कंडीशंस में क्या है, इफ द पेशेंट बैक पेन का प्रॉब्लम होकर आता है, तो उसमें फर्स्ट वाला हम उनको कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, वो सब पूछकर हम उनको पहले उनको नॉर्मल करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह प्रॉब्लम है तो भी दे विल गेट द बैक पेन. तो उस कंडीशंस में क्या हम विल गिव सम इंटरनल मेडिकेशंस, एंड देन विल गिव सम डाइट, थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन देता है. तो उसमें क्या ना उनका कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है, उसमें बैक पेन भी नॉर्मल होता है. बट इन केस ऑफ स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, आई मीन आपका डिस्क वगैरह रिलेटेड, लंबा डिस्क रिलेटेड, वो थोड़ा सीवियर केसेस है. तो उस कंडीशंस में हम क्या, उसमें क्या ना डिस्क प्रोट्रूड होकर इट इज कमिंग एंड प्रेसिंग द नर्व्स, तो उसकी वजह से दे आर गेटिंग द पेन इन द लेग्स में भी पेन होता है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, नमनेस, ये सब आता है. तो उस कंडीशन से ओनली इंटरनल मेडिकेशन से नहीं होता. तो उस कंडीशन में हम उनको इधर हमारा ट्रीटमेंट बोलते हैं. ट्रीटमेंट मीन्स खड्डी बस्ती, कड़ी पिचू, अभ्यंगम, किडनी करके हमारा ट्रीटमेंट होता है. वो हम करते हैं 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, ऐसे हम करते हैं. उसमें ऑलमोस्ट कितना लोग, आई मीन बहुत केसेस आता है डिस्क रिलेटेड, क्योंकि हमारा मेन इधर डिस्क रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस ही हमारा मेन ट्रीटमेंट होता है. तो ऑलमोस्ट बहुत सारा पेशेंट्स का इतना रिलीफ मिलता है हमारा ये ट्रीटमेंट से. ऑलमोस्ट 90-95% लोगों को सर्जरी बोलते हैं, उन केसेस में भी ऑलमोस्ट 21 डेज ये ट्रीटमेंट से बिल्कुल बेनिफिट होता है. एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट विल एडवाइज द पेशेंट्स टू फॉलो सम डाइट, एंड देन योगा एक्सरसाइज, क्या क्या योगा करना है, लाइक पावन मुक्तासन कर लीजिए, सेतु बंधासन कर लीजिए, लाइक भुजंगासन कर लीजिए. ये सब है ना हमारा बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए.
एंड Right. उसके बाद हम उनसे थोड़ा प्रिकॉशंस भी बोलते हैं कि आगे झुकना नहीं है, आगे झुककर वजन नहीं उठाना, और हेवी लिफ्टिंग वगैरह वो मना है, एंड बॉडी वेट हमेशा मेंटेन करने के लिए बोलता है। ये सब हम हमेशा उनसे बोलते हैं, सो दैट रीओकरेंस उनको नहीं होने के लिए। तो ये सब हमारा ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि कड़ी बस्ती में भी हमारा ट्रीटमेंट, आपको तो आइडिया नहीं होगा कड़ी बस्ती, कड़ी बिच्छू वगैरह, तो वो थोड़ा मैं या सिंपल में बताती हूँ। वो क्या हम होता है कि अभी तो हमारा कैमरा भी वर्क नहीं करे, पता नहीं, तो नहीं तो मैं शो भी कर सकती थी, मैं पूरा चार्ट Yeah, लेकर आया था। actually, right, तो right. उसमें क्या लंबार रीजन में हमारा एक इंस्ट्रूमेंट टाई करके हम आटा से थोड़ा ब्रिज बनाकर, एंड वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 6 ऑयल का मिश्रण होता है, दैट ऑयल मेडिकेटेड ऑयल, वो हम उधर लंबार रीजन में पोर करके रखता है, सर्वाइकल रीजन में किधर है वो पोर करके रखकर उसको ऑलमोस्ट निकालने के बाद अच्छी से मसाज करता है। तो ये सब क्या होता है, क्योंकि डिस्बल्ज हो तो बल्ज आउट नॉर्मल होकर न्यूरल कंप्रेशन नॉर्मल हो जाता है। Mm-hmm. न्यूरल कंप्रेशन मीन्स नर्व कंप्रेस होता है ना, वो नर्व कंप्रेस दूर होकर उनका नर्व पेन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये सब Okay. ट्रीटमेंट बहुत बहुत लाभदायक है। श्योर, आई मीन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुन के, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। हमें तो फ्रैंकली आयुर्वेदा के बारे में पता है, और ये मेन टर्म पता है, दैट पंचतंत्र ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, बट मसाज होता है, पोटली मसाज होता है, बट देर इज टू मच टू नो, बिकॉज कई चीजें आपने ऐसी बताई हैं कि पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि आयुर्वेदा यस, में उसका क्योर भी है। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि कल को किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, तो we can just recommend them to go to an ayurveda clinic and get this done, because they have यस, a ट्रीटमेंट्स cure to it. हैं। So it's very good to know कि इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, इतनी आप लोग कितनी एक्सपर्टीज है इस चीज में कि हम कम से कम मेडिसिन के थ्रू उसको रूट से भी और प्लस विद टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, you said, massages, it can be यस, corrected. So it's really important for everyone to know this ki please bataiye, Dr. Soumya, people are asking me that where is your clinic, and how can they reach to you in case of an issue. ओके, सी मेरा क्लिनिक आयुर्सोख्या नाम से है। आयुर्सोख्या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट सेंटर सेक्टर 56 में है, एंड गुड़गांव। ओके, एंड देन मेरा नंबर तो आप शेयर कर सकते हैं। एंड हमारा मेन ट्रीटमेंट होता है इधर, हमारा प्योर पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स होता है। उसमें मेन डिस्क रिलेटेड, ओस्टियोआर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर वाला, एंड देन माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड देन डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसके लिए हमारा Okay. पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स होता है। एंड इसमें पंचकर्मा में तो डिटॉक्सिफिकेशन थेरापी हम करते हैं इधर। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स हमारा पूरा बॉडी का अंदर से क्लीन करता है पूरा, उसमें वोमिटिंग कराता है एंड लूज मोशन कराता है, और एनिमा देते हैं हम, एंड देन ब्लड लेटिंग विद लीच थेरापी हम करते हैं इसके अंदर। एक एक पेशेंट्स के लिए अलग अलग होते हैं वो, अभी क्या पेशेंट्स का हिसाब से वो हम डिसाइड करते हैं क्या उनके लिए चाहिए। Sure. Yes, yes, I got it. Okay, cool. Doctor, ये बताइए कि there's a question which I have to pick up. For varicose veins in elders, please advise something. Varicose, सॉरी, मेरे पास एक वेरिकोज के क्वेश्चन लिए। आया है। हाँ, वेरिकोज के लिए जो एल्डर्स में होता है यूजली, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? ओके, वेरिकोज वेन्स, आपका थोड़ा आवाज क्लियर नहीं हो रही है। वेरिकोज वेन्स के लिए ना? हाँ जी, हाँ जी, वेरिकोज ओके, वेन्स। ओके, हाँ, ओके। सी वेरिकोज वेन्स तो अभी इट्स अ, यू नो दैट इट्स अ swollen veins usually seen on feet and legs। तो उसमें क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वाल्व की वजह से द ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है उसके अंदर। तो हमारे इधर इधर स्टार्टिंग स्टेज ऑफ वेरिकोज वेन्स में तो ट्रीटमेंट का जरूरत भी नहीं पड़ता, उसमें तो जस्ट प्रिकॉशंस हम प्रिकॉशंस करने के लिए बोलता है। लाइक थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, लाइक साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, एंड अपर बॉडी थोड़ा वेट वगैरह थोड़ा कम कर लीजिए, एंड लॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर्स अवॉइड कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आप देन वाइल सिटिंग दोनों लेग्स थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ कर लीजिए, सो दैट वो ब्लड फ्लो अच्छा करने के लिए। वाइल स्लीपिंग पिल्लोज वगैरह नीज के नीचे रख सकते हैं, सो दैट आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करने, सो दैट कोई भी ब्लॉकेज वगैरह कुछ है वो रिमूव करने के लिए। बट सीवियर केसेस आते हैं, सीवियर केसेस मीन्स दे विल गेट द पेन, थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन, एंड देन बर्निंग सेंसेशन एक्सेट्रा, ड्राइनेस ऑफ स्किन एक्सेट्रा आता है, इचिंग भी आता है। तो उस कंडीशंस में वी आर हैविंग द ट्रीटमेंट, like we will give the some internal medications,
लाइक गुगलू है, बला है, दशमूल है, पुनरवा है, बहुत सारा मेडिसिन है इंटरनली. एंड एज वेल एज वी आर गिविंग अगेन द थेरापीज लाइक पत्रबिंद स्वेदनम, दैट इज लाइव मसाज. उसमें हम नॉर्मल थेरापेटिक मसाज जनरल मसाज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो वीक है, तो जनरल मसाज करते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड साइड करते हैं, सो दैट टू रिमूव द कोई भी ब्लॉकेज वेन्स में है वो नॉर्मल करने के लिए. एंड देन हम उसके अंदर हम अवगाह स्वे, दैट इज टब बाथ, उसमें हमारा काढ़ा वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ काढ़ा होता है, दशमूल पात का सब काढ़ा होता है, उसमें गर्म करके उसके अंदर थोड़ा पैर उसके अंदर डालने के लिए बोलता है. एंड देन उसमें मेन लीच थेरापी इज मेन. लीच थेरापी मीन्स आपको लीच एक छोटा कीड़ा होता है, आपने देखा होगा, मुझे पता नहीं है. लीच, अच्छा, हाँ, हाँ, शायद तो देखा एक हो। छोटा कीड़ा है. यस. तो वो उससे क्या हम क्या करते हैं, वेरिकोस वेन्स के ऊपर हमें उसके आसपास हम हाँ, उसको रखते हैं, सो दैट वो इट विल सक द ब्लड. तो इट विल अच्छा, सक द इम्प्योर ब्लड. ब्लड सक दिस करके इज उसका कोई इंटरेस्टिंग। भी ब्लॉकेज, यस, कोई भी ब्लॉकेज कुछ है, तो वो उसको निकालने के लिए सबसे अच्छा होता है लीच थेरापी. वो भी एक बहुत अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इन वेरिकोस वेन्स में. एंड देन ओके, एंड यू नो, आई मीन उसके बाद तो नॉर्मल होने के बाद हम पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि प्रॉपर डाइट में जाइए. प्रॉपर डाइट मीन्स फाइबर रिच ज्यादा लेना है, सो दैट उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए. कॉन्स्टिपेशन हो गई तो क्या प्रेशर आ जाएंगे, तो वो प्रेशर अच्छा नहीं होता वेन्स के लिए. एंड देन उसके बाद थोड़ा योगा एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं उसके अंदर. ये सब आपको करना पड़ता है. ये सब करने से उनको ऑलमोस्ट 90% मैं बोल सकती हूँ वो ऑलमोस्ट कंट्रोल होता है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे आता है, वेरिकोस अल्सर्स आता है. वेरिकोस अल्सर्स मीन्स क्योंकि पूरा ये करके उस कंडीशन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें हम है ना उनको कषायम से, हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कषायम है, उसे उनको वॉश करते हैं. एंड देन अगेन द कषायम वगैरह, मंजिष्ठारी कषायम, बहुत सारा काढ़ा है, वो हम गुगल वगैरह प्रिपरेशन वगैरह देते हैं, सो दैट उनको हीलिंग करने के लिए. वो द ट्रीटमेंट्स एक बार पेशेंट्स का सीवियरिटी देकर वेरीज करता है. श्योर, दिस इज वेरी न्यू टू मी। जो आपने बताया ये चीज तो बिल्कुल ही न्यू है एंड लुक्स इंटरेस्टिंग आल्सो, समथिंग न्यू। थैंक यू. एक और क्वेश्चन आया डॉक्टर मेरे पास, व्हिच रैनी राइट्स, डॉक्टर माय हेयर फॉलिंग, प्लीज एडवाइस समथिंग। सो डू हेयर यू फॉल, वांट टू गिव एनी रेमेडी फॉर इट डॉक्टर, एनी टिप्स? हेयर फॉल के लिए ना, या, या हेयर फॉल देख लीजिए, डिफरेंट रीजंस की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि पहले हमें क्या रीजंस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है देखना चाहिए. क्योंकि कुछ लोगों को हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया की वजह से भी हो सकता है. और कुछ लोगों को क्या टेंशन स्ट्रेस इंड्यूस भी होता है ना. तो वो कुछ लोगों को डेफिशिएंसी की वजह से क्योंकि हो जाता है, ड्राइनेस की, डैंड्रफ की वजह से हो सकता है. तो अनीमिया है तो अभी आयरन डिफिशिएंसी, क्योंकि उसमें क्या है ना, मेन डाइट थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि आयरन रिच फूड, दैट इज अनार और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड देन बीटरूट जूस, कैरेट जूस वगैरह उनसे लेने के लिए बोल दीजिए. और उसके बाद प्रोटीन रिच फूड, ज्यादा दाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल, स्प्राउट, ये सब उनसे लेने के लिए बोल दीजिए. एंड डैंड्रफ वगैरह है तो उसमें हमारा ऑयल्स होता है. आई मीन उनको साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारा ऑयल्स होता है. तो नॉर्मल वाला में बता, दुर्दरा दुर्दरा पत्रादि केरदालम करके एक ऑयल आता है, तो दैट इज वेरी गुड फॉर डैंड्रफ के लिए, बहुत अच्छा होता है. एंड निम्बादी तैलम करके आता है, वो भी डैंड्रफ वगैरह नॉर्मल करने, हेयर फॉल नॉर्मल करने, हेयर ग्रोथ के लिए नीलबृंगादि तैलम. एंड देन हमारे पास त्रिफलादि तैलम है, चंबर इत्यादि. चंबर इत्यादि मीन्स हाइबिस्कस, आपने सुना होगा, हाँ, हाइबिस्कस. यस, एक हाइबिस्कस गुड़हल फ्लावर, का एक पत्ता. प्लांट होता है उसका। यस यस, हाइबिस्कस इज अ गुड़हल का पत्ता है. गुड़हल का पत्ते का भी तेल मिलते हैं आपको, वो भी यूज कर ओके, सकते हैं. एंड देन त्रिफला का, अभी हम मैंने बोला त्रिफला, त्रिफला हेयर पैक इज द बेस्ट फॉर हेयर ग्रोथ के लिए. तो वो आप एक बार डॉक्टर से जाकर मिलिए, और एक बार क्या उन आपको प्रॉब्लम है वो, एक बार वो रूट कोज को हमें नॉर्मल करना है. तो रूट कोज मीन्स एनीमिया है तो उनको सप्लीमेंट देना पड़ेगा. एंड नहीं डैंड्रफ की वजह से तो डैंड्रफ को नॉर्मल करना पड़ेगा. नहीं तो स्किन इश्यूज होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को क्या ना सोरियासिस टाइप आता है, तो उन केसेस में उनको नॉर्मल करना पड़ेगा. तो क्या रीजन से देकर वो ट्रीटमेंट वेरीज करता है. लेकिन हेयर फॉल के लिए भी बहुत सारा ट्रीटमेंट अब हमारे पास है. मेन नहीं तो उनसे त्रिफला जूस पीने के लिए बोल सकते हैं, नॉर्मल सिंपल आंवला जूस डेली बेसिस लेने के लिए बोल सकते हैं. ओके, भृंगराज आपने सुना होगा, हाँ, भृंगराज का जूस, ये राइट, सब बहुत बेनिफिट होता है, हेयर फॉल में भी बहुत बेनिफिट होता है ये सब. लेकिन ये सब एक बार डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सब ठंडा भी होते हैं, भृंगराज वगैरह बहुत कोल्ड होता है, तो साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम, नहीं तो कोल्ड वगैरह उनको बार बार हो रहा है, तो उन कंडीशन में उनको सूट नहीं मिलेगा. तो वो एक बार जाकर मिलिए, और उसके बाद
ये कर ली थी, लेकिन ये बेसिकली आइडेंटिफाई नॉर्मल करना में है बोला। कि क्यों हो रहा है और उसके बाद इस तरह की रेमेडीज को यूज कर सकते हैं, यस। right? Okay, sure. And doctor, my last question to ऑयल you is, आप ಇದು बताइए ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. आजकल लोगों हेलो को इतना ज्यादा, हेलो. कैन यू हियर मी? आपको जस्ट अ आवाज मिनट, आ रही आई है? कांट हियर. डॉक्टर हेलो, सौम्या, या आवाज आ रही टेल है मेरी? मी. यस यस, बोलिए. ओके, सो आई वाज सेइंग दैट डॉक्टर सौम्या, आजकल बहुत सारे लोगों को हेडेक इश्यूज आ रहे हैं, माइग्रेन इश्यूज आ रहे हैं, एंड इवन द मिडिल एज पीपल आर फेसिंग दीज इश्यूज। मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स हैं, दे आर हैविंग हेडेक इश्यूज रेगुलरली। उनके लिए आपके पास क्या टिप्स हैं? व्हाट होम रेमेडीज दे कैन डू हेडेक के लिए ना, ओके. हेडेक के लिए? हेडेक का भी, या हेडेक का भी देख लीजिए, बहुत सारा रीजंस, मेनी रीजंस आर देयर फॉर हेडेक. लाइक क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से भी होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस से तो भी होता है. एंड देन इफ द पेशेंट इज हैविंग सम साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम, उसमें भी हेडेक हो जाता है. टेंशन हेडेक, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक हो जाता है. एंड देन उसके बाद आई रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से हेडेक होता है. माइग्रेन दोनों में बोलो, हेडेक एंड माइग्रेन दोनों में बोलो. एंड उसके बाद आप ये भी हो सकता है कि आई डिसऑर्डर्स की वजह से मैंने बोला है. एंड देन बहुत ज्यादा मोबाइल्स एंड गैजेट्स वगैरह यूज करने की वजह से भी हो सकता है ना. ये सब की वजह से भी ये हेडेक हो जाए. तो मेन हमें क्या चाहिए, तो क्या रूट कोज है वो देखना पड़ेगा. तो किस पर्पज की वजह से वो उनको हेडेक हो रहा है. ये तो सिंपल गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम की वजह से भी, दैट इज कुछ लोग आते हैं पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में, बोलते हैं कि हेडेक है, कंटिन्यूस हेडेक है. तो लेकिन हम हिस्ट्री उनका लेंगे तो उनका जस्ट सिंपल कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, उनका सिंपल कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, गैस्ट्रिक होता है. तो उसमें हम हेडेक का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक करेंगे, उनका माइग्रेन भी नॉर्मल हो जाता है, एसिडिटी नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल हो जाता है. बट राइट। एक हेडेक ड्यू टू स्लीप डिसऑर्डर्स, अभी नींद का प्रॉब्लम की वजह से है. तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए, उनको अच्छा नींद आने के लिए ब्रह्मी, अश्वगंधा वगैरह टैबलेट देना चाहिए. बट इन सीवियर केसेस, इंसोम्निया केसेस आते हैं, बिल्कुल नींद नहीं आते, तो पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल नींद नहीं आते डॉक्टर. तो उस कंडीशन में हमारा ट्रीटमेंट होता है. ट्रीटमेंट मीन्स हमारा क्षीरधारा करके एक ट्रीटमेंट है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट है. उसमें हम क्या करते हैं, मेडिकेटेड दूध, दैट इज दूध के अंदर हमारा बहुत सारा जड़ी बूटियां डालकर वो हम है ना उनका धारा कर रहे हैं. धारा मीन्स फोरहेड के ऊपर, ओके. ओके। फोरहेड में हम उसको पोर करके, आई मीन ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स तक हम पोर करके एंड लाइट मसाज भी दी जाए. तो उससे क्या होता है, उनका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है एंड बिल्कुल उनका केमिकल इम्बैलेंस नॉर्मल होता है. तो उससे क्या ना, उनको बिल्कुल स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम ऑयल के वजह से, ऑयल मेडिकेटेड ऑयल से शिरोधारा करते हैं. एंड देन माइग्रेन, तो हेडेक ड्यू टू माइग्रेन, हेडेक एंड माइग्रेन ड्यू टू ऑल दी स्लीप डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये सब करने की वजह से नॉर्मल होता है. एंड उसके बाद साइनस रिलेटेड पेशेंट्स, तो साइनस में भी है ना हेडेक हो जाता है, साइनस हेडेक. तो उस कंडीशंस में हम है ना उनको साइनस ठीक करना चाहिए. साइनस मीन्स ऑल साइनस एरिया में बेलगम एक्यूमुलेट होने की वजह से, द फ्लैम एक्यूमुलेट होने की वजह से होता है. तो उस कंडीशंस में हमारा दूसरा ट्रीटमेंट होता है, आई मीन मेडिकेशन देते हैं. आई मीन स्टार्टिंग स्टेज तो मेडिकेशन से ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में मेडिकेशन से ट्रीट नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्टेजेस आते हैं. उस कंडीशन में हम क्या देते हैं उनको, नस्यम ट्रीटमेंट देते हैं. नस्यम मीन्स हमारा एक पहले हल्का मसाज वगैरह फेस, आई मीन साइनस एरियाज, उधर हम मसाज करके स्टीम देने के बाद, हर्बल स्टीम देता है. हर्बल स्टीम देने के बाद उनको नेसल ड्रॉप डालते हैं, दैट इज मेडिकेटेड नेसल ड्रॉप डालता है. तो वो भी 7 days का है प्रोसीजर, 14 days का प्रोसीजर है, 21 days का प्रोसीजर, ऐसे. तो वो डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स का कितना सीवियरिटी वो देकर. एंड देन श्योर। आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आई मीन हेडेक ड्यू टू आई रिलेटेड है, तो एक बार आई एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग ऑफ आई मसल्स के लिए. उसमें तो रोटेशन कर लीजिए, अपन नीचे ऊपर नीचे देखना, आई मीन आई मसल स्ट्रेंथन के लिए आई एक्सरसाइज करना है. एंड देन आई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होकर आते हैं, बच्चे लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग है ना, वो पावर बहुत ज्यादा बढ़ता है. तो उस कंडीशन में हमारा वी हैव इन द ट्रीटमेंट सेशंस लाइक अक्षय तर्पण. अक्षय तर्पण मीन्स हमारा घी होता है, मेडिकेटेड घी होता है, एंड विल पोर ऑन द आइस, ओके, एंड विल कीप इट फॉर ऑलमोस्ट 30 minutes. उसके बाद वो उनसे बोलता है ब्लिंक करने के लिए. तो हल्का बर्निंग सेंसेशन होते हैं, बट इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द आई मसल स्ट्रेंथन करने. ओके। तो उसके बाद ये तो आई रिलेटेड हो गया. एंड उसके बाद स्ट्रेस हो गया. एंड देन गैस्ट्रिक इश्यू से तो गैस का प्रॉब्लम ठीक करना है. और उसके बाद गैजेट, आई मीन बहुत ज्यादा मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें थोड़ा अरेस्ट करने के लिए बोलता है. तो ये सब हमारा हेडेक का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है. और इसमें उसके बाद हम ट्रीटमेंट्स के बाद नॉर्मल होने के बाद उनसे मेन डाइट वगैरह भी बोलता है, एंड प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं. मेन प्राणायाम मीन्स साइनस रिलेटेड पेशेंट्स के लिए
क्योंकि साइनस एक बार नॉर्मल 90% नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद होने के बाद भी समटाइम्स रीऑकरेंस होता है, क्योंकि डाइट की वजह से होता है। तो इन केसेस में क्या ना, डेली प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम मीन्स अनुलोम विलोम, उद्गीत प्राणायाम, कपाल भाती, ये सब करने से क्या ना, ये साइनस एरियाज कोई भी ब्लॉक चोकिंग कुछ है वो निकल कर जाता है, सो दैट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम सब क्लियर होता है। एंड देन स्ट्रेस Sure. रिलेटेड है तो उसमें हमसे मेडिटेशन कर लीजिए। दैट इज मेडिटेशन मीन्स ऑल दैट ओंकार चैनिंग कर सकते हैं, नहीं तो भ्रामरी कर सकते हैं। तो ये सब करने से केमिकल इम्बैलेंस नॉर्मल हो जाता है। एंड देन वी हैविंग द मेडिकेशंस आल्सो, मेडिसिन आल्सो हो गया हैविंग लाइक अश्वगंधा का बहुत सारा मेडिसिन भी है। आई मीन सिंपल वाला मैं बोलती हूँ, ब्रह्मी, अश्वगंधा और सरस्वती अरिष्टम वगैरह है सब है। एंड साइनस रिलेटेड के लिए कषायम फॉर्म है, टैबलेट फॉर्म में है, दशमूल Okay. कषायम, इंदुगाना वगैरह। ये सब बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है हेडेक के लिए। लेकिन हमें हेडेक क्या रीजन की वजह से हो रहा है वो एक बार देखना है, क्योंकि हमारा आयुर्वेदा में हम क्या, वो रूट कोज Sure. क्या है उसको और उसको ट्रीट करता है, इसलिए Right. उनका रिलीज होता है। श्योर यस, डॉक्टर, आई मीन इट्स सो गुड। मुझे तो लग रहा है कि मैं कितनी देर भी आपसे बात करूं। आई मीन इट्स सो इंटरेस्टिंग टू नो सो मेनी थिंग्स, सो आई एम रियली अमेज्ड एंड इट्स सो informative. So thank you so much for doing this session with us, Dr. Soumya. It was really थैंक informative and it is going to help n number of people, and they can now visit you, they can consult you for anything which they come up with, because I think now I have a belief that Ayurveda is going to help and can cure even these kind of problems which a lot of people are facing these days, यस, which you mentioned about diabetes, BP, and gas or migraine. So, and sinus. I mean, most of the things are which many of us face, but we keep on just checking out the right way to cure it. So, I think we got that way with you. So, thank you so much for your valuable time. It was great interacting with थैंक यू, you. थैंक यू। Thank you so